Sorry. ऐसे ऐसा थॉट है कि appropriate, comfortable sitting posture, basic Vastrikasana, Vipassana, Mahasana, each reverse are erect, cheerfulness, very very well. You can have art. Hari Om, Hari Om. We will start. नहीं है Sit in any meditative pose. Padmasana, Siddhasana, Ardha Swastikasana, Ardha Padmasana. Just concentrate in between your eyebrows. Namaskar Mudra. ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. Maintain the pose. Rub your palm. Place it on your eyes. Gently open your eyes and keep your hands on your knees. Just relax. Today's our topic is concept and practice of pranayama. There are prerequisites to start with pranayama. Dr. Ishwar Basava Reddy very nicely given us information regarding prerequisite to practice pranayama.
strengthening of the abdominal muscles, diaphragm muscle, chest muscles. For that, he suggested asanas and all these kriyas so that you can comfortably practice pranayama. Dr. Ishwar Bhardwaj, in his speech yesterday, he also explained how to live in a yogic fashion, because by doing just practice of yoga on the mat will not serve the purpose. हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि केवल हमें अपने सुबह के 1 घंटे के अभ्यास से कुछ होने वाला नहीं। हमें योगिक जीवन शैली को अपनाना है। We have to adopt yogic lifestyle. संतोष धन. So be content what you have. जो आपके पास में है उसमें संतुष्टि की भावना बहुत जरूरी है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रयास नहीं करेंगे, बट जहां तक हमारी प्रगति हुई है उसमें संतुष्ट रखना है और प्रयत्नशील रहना है। नाउ व्हेन वी थिंक ऑफ प्राणायामा, वी जनरली थिंक ऑफ नाड़ी शोधन, inhalation and exhalation, or all the Ashtakumbhakas, सूर्य भेदन, उज्जयी, शीतली, सितकारी, भ्रस्तिका, भ्रामरी, मृच्छा, प्लाविनी, as per हट प्रदीपिका of Swami Svatmara. But Patanjali very nicely quoted the definition of pranayama. तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेदः प्राणायामः. So Patanjali define pranayama tasmin sati. Tat means sati, in that state. अब जब हम उसका विचार करते हैं इन दैट स्टेट, तो आसनों के अभ्यास से, यम नियमों का पालन और आसन, क्योंकि प्राणायाम ये चौथा अंग है और इसलिए पहले 3 अंगों के अभ्यास से हमने ऐसी स्थिति प्राप्त कर लेनी चाहिए जिसमें द्वंद्व का अभिघात हो चुका है। अब सर्वसाधारणतः योग को साधना के रूप में हमें स्वीकार करना चाहिए, न कि केवल स्वास्थ्य रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए। बट व्हेन वी थिंक ऑफ practicing yoga, we are concentrating on the techniques. Nowadays, there are a lot of research regarding pranayama also. Yesterday, Dr. Basavareddy had shown few studies in his presentation, because a modern man wants scientific proof, and credit goes to Swami Kuvelanand, who first time in the world put these yogic practices in scientific laboratory and try to establish the hidden science in yogic practices. But when we just concentrate on the technique or practice, we forget the person. Now, yoga is individualistic. Every person have his own way of behavior, way of thinking, nature of work are different, their lifestyles are different, their eating habits are different. So, yoga suggested holistic approach
to the humanity. As Swami Kuvelananda says, it is a message to human body, it is a message to human mind, and it is a message to human soul. So, just by practicing an hour will not help. But today we have very short time to understand the concept of pranayama. Now, generally, theoretically, it is said prana and ayama. Now, when we think of prana, there are a lot of understanding. Some says it is a vital energy, some says it is a life energy, some says it's a life force, some says it is a consciousness, it is something that is moving in the body and in the whole universe, that is known as Mahaprana, and at individual level it is known as Nasikya Prana. Prana is everywhere. Without prana, nothing is exist. But how to control this for an individual is an important task. First, somebody translate it, pranayama means control of prana. No. Extension of prana. So you have to expand it. Extension is important. But when we start the practice of pranayama, we have to concentrate inside the body, because we have to control the prana. As saying goes, चले वातम चले चित्तम निश्चले निश्चले भवेत. जैसे हवा चलती है, वात चलता है, या वायु चलता है, या प्राण चलता है. अभी मैं सभी के यहाँ पर शब्द या कह रहा हूँ, और दिस, बट these are technical terms, we must understand them. Vayu is a technical term. Prana is a technical term. Vata in Ayurveda, it is a technical term. Air is just the in atmosphere. Hawa, there are different words. So let us, we concentrate on Vayu. I learn this pranayama through my guru, teacher, who devoted himself for the sake of yogic practices and render his services in yogic research, Dr. M.L. Bholeji. Dr. Bhole, who is a medical practitioner, but he never practiced. He just devoted his whole life in the field of yoga. He established some part of yoga, and his way of thinking is experiential yoga, anubhav, yoga anubhav. Now, anubhav, experience is important factor. But nowadays, due to development of modern science and understanding of physiology, the doctors used to use the term inhalation, exhalation, oxygen, carbon dioxide, and in experimentation, we have taken the samples of the air coming out from the lungs and the volume and all this, but they are not related with yogic practices. So, if you want to learn yoga, you have to go to the traditional text. Traditional text teaches us about experience. Now, just sit calm and quiet and experience what is happening in
your body. I am talking about Deha Bhav, as Bhule ji, Dr. Bhule used to say. अपने शरीर के प्रति सजग हो जाइए। What we experience generally, people used to answer, there is a pain, दर्द हो रहा है, क्योंकि अपने आप की तरफ जाने की पहली सीढ़ी, पहली सोपान, पहली पायदान हमें, क्योंकि दर्द का अनुभव हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का है, तो वो ही पहले आएगा। अब वहाँ अनुभव, एक्सपीरियंस को हमने अपने शरीर के सभी हिस्सों में महसूस करना है। पैर के पंजे, टखने, घुटने, हिप जॉइंट, स्पाइनल कॉलम, शोल्डर्स, एल्बो, रिस्ट, फिंगर्स, neck joint. Generally, due to faulty way of living or habits, there is a stiffness in our joints and muscle. So, by practicing asana, you should disperse this mental tension through physical means. So, asanas, passive stretching is important. Then, if there is a disturbance in your humors, Vata Pitta Kapha, then practice Shatkarma. As Hatha Pradipika says, Kapha and Vata, fat or Vasa, if it is more, you should practice Shatkarma. Now, every day, if you sit calm and quiet, naturally, your capacity to sit erect will enhance. And if you can sit properly for a long period of time, then and then we can experience the current of prana. But before going to that, we must understand there are Vayu Margas. Vayu, see, if you see with your open eyes what is going on outside in this universe, you see there is a movement. So the work, the function of Vayu is movement. Now, what type of movement are there in your body? So survival functions are, are always present. There is a digestion, respiration, circulation, all these activities are continuously are there. Can we aware of them? So our ancient Sikh, saint, yogi, seers found out that our respiratory system is the only system which
work automatically, and we can influence, modify, change our breathing pattern. If we eat something and we try that it should not be digested, so it's a difficult task. So it's a better way to overcome conflicts of mind or fickleness of mind. As Patanjali says, Yoga Chittarutti Nirodha is yoga. There is a movement, there is a movement of Vayu and there is a movement of mind. If we stop the movement of prana or Vayu, we may experience pause, calmness, peace, cessation of thought also. So प्राण is a medium. ये दुआ है शरीर और मन के बीच का. शरीर को नियंत्रित करने से प्राण नियंत्रित होगा. We can channelize in a particular area. We can block it. That is known as Bandhayan Mudra. Rightly pointed by Gharenda Muni, Gharenda Sanhita, in Gharenda Sanhita. Pranayama should be practiced after learning Bandha Mudras and Pratyahar. Pratyahar, withdrawal of the sense organs from the external object. बाहर से आने वाली हमारे ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त होने वाली जानकारियों से अपने आप को रोकना और उसे इंट्रावर्ट, इनर अनुभव की तरफ ले जाना. तो ये प्रत्याहार है. ये पहले होना चाहिए प्राणायाम अभ्यास के. और प्राण को बांधना. कल डॉक्टर बसव रेड्डी ने उनके अंतिम मिनटों में बंधों के बारे में बात कही कि प्राणायाम में बंध का अभ्यास बहुत जरूरी है. स्वामी कुवलयानंद जी हमेशा इस बात पर एम्फेसाइज करते थे, यदि आप कुंभक कर रहे हैं, आई थिंक वी नो what is Purak, what is Kumbhak, what is Rechak. कुंभक यानी रिटेंशन ऑफ ब्रीथ. जब हम सांस को रोक के रखते हैं तब जालंधर बंद लगाना चाहिए. It will work as a safety wall in a pressure cooker, just like in a pressure cooker. जैसे हमारे कुकर में एक सेफ्टी वॉल होता है जो बड़े एक्सीडेंट से हमें बचाता है, उसी प्रकार अगर हम जालंधर बंद लगाना आना चाहिए. There are different tradition to apply jalandhar band. Some used to fix their chin to the jugular notch. There are some institution they ask their student to fix the chin on the chest. There are few institution where they ask the student to elevate the rib cage up to the chin, and there should be a natural lock. So there are different methods. So for a common man, just bend forward, touch your chin with ease, but keep your chest raised.
हमें सामान्य व्यक्ति को सीना फुलाकर, गर्दन झुकाकर, ठुड्डी को जहां वह सहजता से, ना पकड़ के जॉगुलर नोच में भी नहीं लगाना और बहुत ज्यादा आगे झुक के सीने पर भी नहीं लगाना, जैसे आप सहजता से कर सकते हो, क्योंकि इसका अभ्यास हमें अभी करना है। उड़ियान बंद रेचकांते, जब आप पूर्ण रूप से रेचक कर रहे हैं और रेचक का अंतिम जो हिस्सा है पूरा, यानी जब सांस बाहर निकल जाता है, तब आपका उड़ियान बंद लगेगा और पूरक कुंभक रेचक में आपका मूल बंद, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्फिंक्टर्स एनस मसल्स शुड बी देयर। तो यहाँ शुरुआत में बड़ा कठिन लगता है, परंतु नियमित अभ्यास से संभव है। अब प्राणायाम की शुरुआत हम कैसे करें? निश्चित रूप से हमने आसनों का अभ्यास कर लेना चाहिए और फिर प्राणायाम की तरफ हमने जाना चाहिए। अगर हम आसनों के अभ्यास के लिए हमारे पास में समय नहीं है, तब भी हमें कुछ बेसिक मूवमेंट्स कर लेनी चाहिए। जैसे अभी हम यहाँ करेंगे, टू चैनलाइज द वायु इन डिफरेंट मार्गास, पूर्व मार्ग, देन वाम मार्ग, दक्षिण मार्ग राइट साइड, एंड पश्चिम मार्ग. There is a central channel also, that is madhya marg. So just keep your hands on your knees and bend forward. धीरे धीरे आगे झुको, सहजता से. Keep your spine straight. Experience what is happening to your breathing. Which part of the body is more active? You can go little more downward. No need to do yoga mudra. Simply slowly come back. Sit erect. Now place your hands at the back of your buttocks. Open your shoulders. Lift your chin upward. Raise your chest, shoulder backward. Experience the frontal side, front side. Slowly come back. Now, sideward stretching, lateral bending. Raise your both hand upward. Interlock the fingers. Turn your palm upward. Stretch your body upward. Now, go to the right side. Pull your right shoulder upward. Push your right shoulder upward. उजव्या बाजूला, दाहिनी तरफ थोड़ा सा झुकना है. रीढ़ की हड्डी सीधी, रीढ़ से नहीं झुकना. सीने को रोटेट, अब ये टिल्ट नहीं करना, सीधा खींच के रखना. चलिए वापस दूसरी तरफ धीरे धीरे. स्ट्रेच इट, उस वहां खींचना है. धीरे से वापस. दोनों हाथ नजदीक के रास्ते से नीचे. सिट इरेक्ट.
Now, let us understand breathing technique first before we go to pranayama. Nowadays, there are breathing exercises. Sometimes it also termed as pranayama. Keep your hands on your trunk. अपने हाथ कमर पर रखो. Now experience the movement takes place. क्या आपको कोई हलचल का अनुभव हो रहा है? बोलिए. यस. कैसे प्रकार का हलचल है? मूवमेंट इन एब्डोमेन. इट इज रिलेटेड विथ योर ब्रीदिंग. आपके श्वसन के साथ जुड़ा हुआ है ये? यस सर, वेरी गुड. क्या आपको भी ऐसा ही अनुभव आ रहा है? वेरी गुड. नाउ वो अनुभव कैसा है? सांस ले रहे हैं तब पेट बाहर जा रहा है, सांस छोड़ रहे तब अंदर आ रहा है, या सांस ले रहे हैं, सांस अंदर आ रही है तब पेट बाहर जा रहा है, सांस बाहर जा रही है तो पेट अंदर आ रहा है. इसमें से क्या अनुभव है? फिर से एक बार सभी करेंगे. डोंट डू इंटेंशनल ब्रीदिंग. जानबूझकर हमें पेट फुलाना और सिकुड़ना नहीं है, सीना उठाना और गिराना नहीं है, जो नेचुरल चल रहा है. क्योंकि ब्रीदिंग जब तक नेचुरल नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते. यस, बोलिए मिस्टर करण. इनका कहना है कि जब हम सांस भरते हैं तब वह स्पाइन की तरफ जाता है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो वह बाहर आता है. क्या मिस्टर रहाणे आपका भी यही अनुभव है? ओके. अब यह उचित नहीं है. आज हमें यह देखना चाहिए कि जब नवजात शिशु को हम जस्ट रिलैक्स, आराम से बैठो, आराम से बैठो. नवजात शिशु को हम देखते हैं कि उसे जैसे ही लिटाया जाता है तो उसका पेट नीचे ऊपर होता है. सांस लेते हैं तो पेट ऊपर जाता है, सांस छोड़ते हैं तो अंदर जाता है, और हमारा अनुभव उल्टा आ रहा है. तो हमें पहले इसे ठीक करना होगा. It should be a normal, natural breathing. Why it's happened? Due to tensions of day-to-day life. Everybody in this 21st century, he is in tension. He or she, whatever it may be. So this tension affect our muscles, and not only muscles, it also affect our breathing. And that's why sometimes we use, instead of using our diaphragm, we use our intercostal muscles. And what happens when somebody asks you to inhale? You expand your chest, and naturally the abdomen will go in. When exhale, you lower the chest and then abdomen comes out. But it should not be. In normal breathing, just when you inhale, relax yourself, so abdomen will come out. When if you want to exhale, it should go down.
नहीं, चलो फिर से रखो। हाँ, फुलाना नहीं। क्या होता है, जैसे ही हमें कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, वी स्टार्ट वर्किंग अकॉर्डिंगली। डोंट रिलाई ऑन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द आउटसाइड। यू हैव टू टेक एक्सपीरियंस ऑफ योर ओन। आपको अपना अनुभव लेना है। कुछ योग के विद्यार्थी सोच रहे होंगे, हठ हठ योगिक टेक्स्ट में तो वायु को ऊर्ध्व करना है, ऊपर की तरफ खींचना है, सीने को फुलाना है, मूलबंध लगाना है, सांस लेते हुए पूरक करते हुए एक्सपांशन ऑफ द चेस्ट है। और सर बोल रहे हैं कि पेट फूलता है। मैं नॉर्मल ब्रीदिंग की बात कर रहा हूँ, सामान्य श्वसन, नेचुरल, प्राकृतिक। क्योंकि नवजात शिशु जो ब्रीदिंग करता है, वह उसका प्राकृतिक ब्रीदिंग है। आपने देखा होगा कि उसका पेट कितना फूलता है और सिकुड़ता है। तो यह जो है डायफ्रामिक ब्रीदिंग है। इसे मॉडर्न फिजियोलॉजी में व्हेन वी टेक ब्रीथ, डायफ्राम गोज डाउन, व्हेन वी एक्सहेल इट मूव्स अप, एंड दैट व्हाट हैपेंस इन उड़ियान बंद। When you exhale and expand your chest, the diaphragm goes further inward, upward, and that's why stomach goes in. So just normal breathing. Or if you are not able to experience this in a sitting posture, you may lie down. थोड़ा सा लेट जाइए। क्या करना है, अपने घुटनों को बेंड करके रखना है, हाथों को पे रिलैक्स कर देना है, पेट को ढीला छोड़ना है। Now observe the movement of umbilicus, navel. When there is inhalation, it moves up. When there is exhalation, it goes down. Let us experience. Don't do it. करना नहीं है। जो हो रहा है उसे महसूस करना है। Keep your leg folded. घुटनों में कंधे के बराबर अंतर। हाँ, पोजीशन सही होनी चाहिए। Concentrate on your navel. नाभि की तरफ ध्यान। आप लेटे लेटे बताइए, क्या आपका पेट नीचे ऊपर हो रहा है? वेरी गुड। So you recognize and you are seeing that it is in a natural form. It's moving up and down. Now, if we do this thing in a vertical position, can we get the same experience? What do you think? Let me know first. क्या अभी जो हो रहा है वही जब हम बैठे हुए स्थिति में जाएंगे तभी भी वैसा ही होगा, या होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए। आपका क्या कहना है? हाँ, ये जो सेम वाली बात है ना, बड़ी खतरनाक। हर एक का अपना व्यक्तिगत सोच है। वी हैव सम बिलीफ्स, फेथ।
और उन बिलीफ और फेथ के अनुसार ही हम सोचते हैं। किसी दूसरे के विचार से अपने आप को प्रभावित नहीं होने देना। ओके, नाउ स्लोली टर्न टू द राइट एंड सिट। धीरे धीरे। Again, folded legs, sit erect, chest little bit upward, close your eyes. Allow your body to settle. जो साथ में कर रहे हैं उन्होंने भी आंखें बंद करके अपने अनुभव को देखना है, न कि मोबाइल में, लैपटॉप में। कीप योर आईज क्लोज। सी द पैटर्न चेंज। Now again place your hands on your trunk, side, left and right. Yes. Now, Mr. Karan. ओके, आप हिंदी मराठी में बोल सकते हैं अपने अनुभव को बखान करने के लिए। सही मातृभाषा में अगर बोलेंगे तो हम अच्छे से बोल पाएंगे। बिकॉज आपकी आवाज तो यहाँ इस माइक में नहीं आ रही है। आई हैव टू ट्रांसलेट इट, और मुझे ही उसे फिर से दोहराना है। तो आप अपना अनुभव अपनी मातृभाषा में बताइए। देखो, ही इज यूजिंग द टर्म इनहलेशन एंड एक्सहेलेशन इन हिज मदर टंग। वो अपने मातृभाषा में शब्द का प्रयोग कर रहा है, इनहलेशन एंड एक्सहेलेशन। हमारा वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं है। आप इनहेल करते हो कि हवा अंदर जाती है? लेट अस स्टार्ट विद दिस। दिस इज बेसिक क्वेश्चन, जनरली डिडंट आस्क और वी नेवर थिंक अबाउट इट। क्या होता है? सांस अंदर जाती है कि आप लेते हो? वेरी गुड, हम लेते हैं। आपका क्या कहना है डॉक्टर राणे? अच्छा, इट्स हैपन्स। वो अपने को कुछ करना नहीं पड़ता। इससे नेचुरल वे, लेट इट हैपन। अब फिर भी हमें उसको मॉडिफाई करना है, उसमें बदल करना है, उसको हमें परिवर्तित करना है। तो हमें वो नेचुरल कैसा चल रहा है, क्यों चल रहा है, ये तो समझना पड़ेगा। तभी तो हम प्राणायाम के क्षेत्र में, योग के क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे। वो अपने आप हो रहा है, ये तो थैंक्स टू द नेचर। वरना
लोग सांस लेने की भी उनके पास में फुर्सत नहीं होती, इतने अपने आप को एक्सटर्नल वर्ल्ड में लगा देते हैं, तो वहां अपने ब्रीदिंग की तरफ ध्यान ही नहीं देते। चलो, तो हाउ आवर बॉडी एक्सपांड, आपका शरीर फूलता और सिकुड़ता है ना। हाँ, यस सर। करण जी, आपका भी? अरे वाह, सबका ही फूलता होगा, जो देख रहे हैं सुन रहे हैं, नहीं क्या? वेरी। कौन फुलाता है? हरि ओम। सी, जब हमारे पास में कोई जवाब नहीं है, तब अगर हम भगवान को मान लेते हैं, भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं, तो इट इज अवर वीकनेस। भगवान करता है। योग ने भी ईश्वर तत्व को माना है, नहीं ऐसी बात नहीं है, परंतु वह ईश्वर को परिभाषित भी करता है। वो कहता है, क्लेश कर्म विपाका शरीर परा मुष्टः पुरुष विशेष ईश्वरा। So, if you analyze this definition, you will understand it is a psychological device to uplift yourself. वो कुछ नहीं करता। वैसे भी हमारे यहाँ निराकार निर्विकार की भी बहुत सारी चर्चा होते रहती है कि वह एक दिए के जैसा है, जिसमें आप अच्छा करो या बुरा करो, दिए कुछ उसमें फर्क नहीं पड़ता है, और वह आपकी अपनी सोच है। तो उसी में हमने थोड़ा-सा अपने अब हाथों को अपनी बगल में लगाना है। इधर देखिए मेरी तरफ, थोड़ा आँखें खोल कर, फिर वैसा ही अनुभव लेना है। आई नो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि डॉक्टर भोले जी कहते थे कि हम उन्हें अनुभव देने का प्रयास करते हैं, वो अनुभव को छोड़कर अपने बुद्धि का, इंटेलिजेंस का उपयोग करते हैं और जवाब देते हैं। Just use your common sense. There is no need of your intelligence. Experience the things. कुछ मूवमेंट हो रहा है? यस सर। So it expand and come back, है ना? Okay. What's your experience? चेस्ट ऊपर जाता है तो हाथ, जो ऊपर हाथ रखा है, ये भी हल्का सा ऊपर जाता है। सी, अब अपने यहाँ दो व्यक्ति है, दोनों के अनुभव अलग है। बहुत अच्छी बात है, कम से कम आप अपने अनुभव कह रहे हैं। दोनों के हाथ रिलैक्स, आराम से बैठो। क्या है, इनका कहना है कि हाथ बाजू में जा रहे हैं और फिर वापस आ रहे हैं। इनका कहना है हाथ ऊपर जा रहे हैं और नीचे आ रहे हैं। सो देयर आवर body movements are multi-dimensional. That day I told you in the first session when we discuss about Shodhana. Now here we need the Shodhana Kriya. Here, if we are experiencing it is moving upward and downward, so you want to be more ambiguous, ambitious, you want something, and there is a lot of tension. If there is a tension, your breathing will move up and down. What Garote ji established the science. Just once we are performing this pranayama workshop at Delhi, Dr. Gharote and myself was two expert was there, and he asked the
practitioner, how you feel. So one lady said she is moving the chest up and down. The whole body moves upward and downward. Then he simply asked, "Are you in administration?" क्या आप एक एग्जीक्यूटिव जॉब कर रही है? तो उन्होंने हंसते हुए मुंडी हिला दी। आई वॉज विटनेस, मैं वहां पर था। तो मैंने सर की ओर देखा, सर ने फिर मेरी ओर देखा। बोला, ये जितना टेंशन में जाएंगे उतना हमारी सांस नीचे ऊपर रहेगी, और बच्चा जिसमें टेंशन नहीं है तो वह फैलेगा और सिकुड़ेगा। अब हमें क्या करना है? अपने आप को खुलना है, खुलने देना है और फिर बंद होने देना है। हमें ऊपर नहीं जाना है, क्योंकि हमारे मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम हमें हमेशा कुछ हासिल करने के लिए, अचीव करने के लिए और कुछ आगे बढ़ने के लिए ही हमें टेंशन में रखते हैं, बचपन से ही स्कूल में जाने से। वो डॉक्टर Hegde in his speech said, and given the name of the some other doctor, that he said, child is born genius, we make him fool by sending in school. बच्चा जब पैदा होता है तो वह जीनियस होता है, परंतु जैसे ही हम उसे स्कूल में भेजते हैं तो हम उसे मूर्ख बनाते हैं, फूल, क्योंकि हम उसे उसके इंटेलेक्ट को शार्प शार्प करने का प्रयास करते हैं। और शार्प चीज काहे के लिए? किसी को काटने के लिए। वरना शार्प कोई, किसी को धार लगाना है तो क्या काम होगा उसका? किसी को काटना है। तो यहाँ भाव बहुत जरूरी है। योग में भी हमें अपने इंटेलिजेंस का उपयोग नहीं करना है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। और इसीलिए प्राणायाम के बारे में हठ योगिक टेक्स्ट हमेशा कहते हैं, गुरु उपदिष्ट मार्गेन, गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग से ही प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। किताब देखकर, वीडियो देखकर, यूट्यूब में जाकर ऐसे आप अभ्यास न करें तो अच्छा है। तो किसी इफिशिएंट टीचर के पास बैठकर ही इसका अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा नॉर्मल ब्रीदिंग ही ठीक से नहीं है और अगर हम प्राणायाम कर रहे हैं, और जैसे कल बसव रेड्डी जी ने कहा कि पेट ही साफ नहीं है और हम प्राणायाम का अभ्यास करने लग जाए, कॉन्स्टिपेशन है, बहुत ज्यादा मला अवरोध है, तो वहां उससे लाभ पहुंचने से ज्यादा हानि होने की संभावना है। तो इसलिए हमने पहले अपने आप को इन पूर्व प्री रिक्विजिट जो है उससे ठीक करना जरूरी है, और इसीलिए टीचर यही करता है कि पहले अपने आप को संतुष्ट रखो कि मैं रिलैक्स हूं। हम सीधे बैठ, ये जब हम योग निद्रा का क्लास लेते हैं तब अनुभव किया है कि जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती है वैसे वैसे व्यक्ति का ब्रीदिंग नॉर्मल होने लगता है, व्हेन ही डिस्कनेक्ट विद द आउटसाइड इन्वायरमेंट। तो बैठकर भी तो यह किया जा सकता है। अब फुलाना नहीं, क्या होता है, सर ने बता दिया कि भाई शरीर फूलता है और सिकुड़ता है, वह ऊपर और नीचे नहीं होता, और जो होता है वह होता है। रिलैक्स, दोनों हाथों को रब करो, आंखों पर, चेहरे पर लगा, वैसे अनुभव आना बड़ा कठिन है। लेट जाओ शवासन में, पैर इधर ही रहने दो, कोई हरकत नहीं, जस्ट लाई डाउन।
रिलैक्स योर लेग्स, दोनों पंजों को अंदर बाहर करो, पैरों को ढीला छोड़ो, मूव देम इनवर्ड एंड आउटवर्ड, दोनों हाथों को शरीर के अगल बगल में रखो, गर्दन को सीधा रखो, नाउ बी अवेयर ऑफ योर बॉडी, whole body from sole to top, top to bottom. Some student, they may think that today there is a workshop on pranayama. Now why he want to ask us to relax in shavasana? Observe the movement of your abdomen. For better understanding, place your palms on your abdomen. अपने पेट पर हाथ रखो, कोनिया जमीन पर ही रहेगी, साइड से जहां तक जाए वहां तक सहजता से। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। Placing of the palm can give you clear cut understanding. There is a movement. Now just experience, or you can become a witness. साक्षी भाव से देखो, चलो अनुभव बाद में करेंगे। रिलैक्स, इसी अवस्था में पड़े रहो और बताओ क्या अनुभव है मिस्टर करण? He is saying that the heartbeats are experienced at the abdominal level. Okay. What about you? कंसंट्रेट करते सिर्फ फॉर्म में असं थोड़ा हल्का सा हलचल होता है, बाकी कुछ पता नहीं चलता। He is saying when we concentrate on our palm, we feel that there is some movement, nothing else. हर एक का अपना अपना अनुभव, देखने का तरीका, साक्षी होने का भाव एक जैसा नहीं है, इसलिए अलग अलग अनुभव आ सकते हैं। कोई भी अनुभव अच्छा और बुरा नहीं है।
क्या आपके सांस की गति कम हो गई? Respiratory rate increased or decreased? Decrease. आपका सांस की गति बढ़ी या घटी? It's a very difficult term to understand. What is normal? Normal है, यहाँ इंग्लिश हो गया, आधा अंग्रेजी आधा हिंदी। नॉर्मल यानी सामान्य। ये बहुत ही खतरनाक है। विशेष और सामान्य दो बातें हमें पता है। ये अगर सामान्य है तो विशेष क्या होगा? Just use your common sense. Don't use your intellect to answer the questions. दूसरे शब्दों में सामान्य और नॉर्मल का प्रयोग न करते हुए क्या आप अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं? तुमच्या शरीरात, तुमच्या हाताला काय अनुभव येतो आहे? पल्स चालते ना सर कुठे पण तशा प्रकारचे. He is feeling that there is a palpitation of heartbeat and he is able to experience the heartbeat in the abdominal area too. सभी का ये अनुभव नहीं होगा। Now this can be a method of diagnosis. आपका कौन सा अंग ठीक से काम कर रहा है, ठीक से नहीं कर रहा है, इस पर भी होलिस्टिक थेरेपी चिकित्सा में हम उपयोग ला सकते हैं। अच्छा, तो अब अपने दोनों घुटने फोल्ड करके अपने हिप के बाजू में रखो, 6 इंच नीचे। जैसे ही हमने मूवमेंट की, ब्रीदिंग पैटर्न बदल गया। कोई बात नहीं, थोड़ी देर आराम। मिस्टर करण, अब सर जी गती आहे सर ते म्हणजे कमी झाली आहे सर श्वास घेण्याची आणि चलिए भाई, टर्न टू द राइट एंड सिट। दाहिनी करवट लो, बाएं हाथ का सपोर्ट लो, दाहिने हाथ का सपोर्ट लो, आराम से उठकर बैठो। एक ही प्रश्न बार बार अगर हम किसी स्टूडेंट्स को पूछते हैं तो वहां आखिर में जो टीचर कह रहा है या टीचर अपेक्षा कर रहा है वही जवाब दे देता है, ताकि दिमाग पर लोड ना हो। अब एक हाथ अपने नाभि के नीचे ओटीपोट, लोअर एब्डोमेन, और उसी लेवल पर ये वाला हिस्सा पीछे से उसी लेवल पर पीछे रखो। अनुभव करना है किस प्रकार की हलचल है।
रिलैक्स। काय अनुभव है करण जी? इनका कहना है कि पीठ की तरफ में कुछ भी अनुभव नहीं है, केवल आगे की तरफ ही अनुभव होता है। आपका क्या कहना है? अच्छा, तो यह झूले के जैसा जा रहा है, आगे जाता है वापस आता है, आगे जाता है वापस है। हाँ, दोनों भी है ना। इट इज मूविंग फॉरवर्ड एंड कमिंग बैक, अगेन मूविंग फॉरवर्ड कमिंग बैक। आपका पीछे का बंद है, आगे ही आगे का जाता है, पीछे में कोई मूवमेंट नहीं। तो इसका मतलब ये है कि इनका पश्चिम मार्ग ब्लॉक्ड है। अब ये जैसे आगे ही आगे जा रहा है, वास्तव में क्या होना चाहिए? यहाँ जैसा योग में कमल, लोटस, हाउ इट ओपन एंड क्लोज, सो होल बॉडी शुड ओपन एंड क्लोज। तो आगे का हाथ आगे जा रहा है, तो पीछे का हाथ भी तो पीछे जाना चाहिए, पर वो नहीं जा रहा है, बाजू में जा रहा है। इधर इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर कुछ भी नहीं जा रहा है, वो आगे अंदर जा रहा है या कुछ मूवमेंट नहीं है। अब अपने दोनों हाथ अपने रीढ़ के कमर पर, रीढ़ की हड्डी के पास रखना और आगे की तरफ झुकना। छोड़ दो, गर्दन को ढीला लटकने दो। कम बैक। आता हलते पाठीमागे। हो सर, क्या बात है। हाँ, पत, बाहर की तरफ जा रहा है कि अंदर की तरफ आ रहा है, या बाहर अंदर बाहर दोनों हो रहे? दोनों हो रहे। आपका अनुभव बाहर की तरफ जा रहा है। अभी आपका आगे की तरफ में था, इनका तो बिल्कुल मूवमेंट नहीं था। इफ वी चेंज द बॉडी पोजीशन, वी चेंज द ब्रीदिंग पैटर्न। और ये सब आसनों में, और इसीलिए आसनों के अभ्यास में हमने वहां कंसंट्रेट करना चाहिए, केवल मसल्स को ही स्ट्रेचिंग नहीं करना है। तो वहां पर वायु मार्ग को खोलना है ना। अब जैसा हम साइड में झुकते हैं, एक कोनी जमीन पर, दूसरा हाथ ऊपर, और इसको सीधा ऐसा करो। ये हाथ अगर ऐसा नहीं करते हो तो यहाँ रखो, तो कम से कम पता तो चले। नाही, ढोपर लावा, ढोपर। हा, हात तिकडे पोटावरच ठेवा, कमरेवर। हा, असं रिलॅक्स रिलॅक्स, हा, सपोर्ट घ्या। हा, सरळ सरळ, ढोपर हिपच्या लाईनीत, मागे मागे मागे। सी भाई पोजीशन, ये जो हाथ का, मेरी और देखिए, इधर दिखाओ। ये हाथ हमारा घुटने पर है और फिर यह कोनी जमीन पर लगाना। तो ये हाथ का और कोनी का डिस्टेंस 1.5 फीट का बराबर हिप के लाइन में। तो ये शरीर सीधा हो, ऐसा आगे झुक कर करोगे तो फिर अनुभव अलग आएगा। इसलिए साइड में लैटरल बेंड, अगर दीवार से हम, हाँ, अब करो। गर्दन को ढीला छोड़ दो, गर्दन को ढीला छोड़ दो, और गर्दन को ढीला छोड़ दो, गर्दन को बाजू में लटकने दो। चलिए वापस। चलो दूसरी तरफ भी करके देख लो।
पहले तो रिलैक्स करना है उस स्थिति में जाके। ट्राई टू रिलैक्स मोर एंड मोर। सीने को खोल कर रखना, सिकुड़ना नहीं, आराम से। स्लोली कम बैक। अब क्या अनुभव था? बस यहीं अटक जाते। चलो और। पेन हो रहा थी। अच्छा, आपका? ठीक है, रिलैक्स, शांति से बैठो, रीढ़ की हड्डी सीधी। अब हमें यह ध्यान में आ रहा है कि हमें दर्द हो रहा है, खिंचाव महसूस हो रहा है। आपसे कहा गया था कि श्वसन के साथ क्या हो रहा है वह देखो। तो हम अपने लक्ष्य से हट गए और जो पहले बताया था कि क्या अनुभव हो रहा है वह देखो। तो आप अब जो 10-15 मिनट पहले, आधा घंटा पहले जो बताया था एक्सपीरियंस, उस लेवल पर आए। और इसीलिए ये बड़ा कठिन काम, टू ओपन द वायु मार्ग। हमने पहले भी आगे झुके थे, पहले फिर हाथ पीछे रखकर पीछे झुके थे, बाजू में झुके थे हाथ को ऊपर खींच के। अब हमने ऊपर नहीं खींचा, बाजू में किया। अब अगर हम ऐसा खींच, दोनों हाथ के इंटरलॉक द फिंगर्स, टर्न योर पाम अपवर्ड, खींचो ऊपर। अब वैसा ही थोड़ा सा झुको साइड में, घुटना नहीं उठाना। नीचे का कंधा कान से सटाओ। अब अपने, अगर आप दाहिनी तरफ झुके हैं तो बाई तरफ के उस एरिया में जहां आपने हाथ रखा था वहां कुछ अनुभव आ रहा है क्या? वापस आंखें बंद रख। दूसरी तरफ स्ट्रेच, पहले खींच के रखो और थोड़ी देर आराम करना। ट्राई टू रिलैक्स एंड मोर इन फाइनल पोजीशन। कम बैक, आगे के रास्ते से हाथ धीरे से नीचे। रब योर पाम, ओपन योर आईज। हाँ, क्या अनुभव था? अच्छा, हलचल महसूस हो रही थी दोनों साइड आपको। चलिए, अब हम सादा सिंपल टेक्निक जो आमतौर पर हम लोग करते हैं, जैसे कल वो हमारे बसव रेड्डी जी बता रहे थे, लेफ्ट एंड राइट, राइट एंड लेफ्ट, लेफ्ट राइट। ये जो अनुलोम विलोम है, तो ये जो चर्निंग है, क्लिनसिंग है, नाड़ी शोधन है, उसका अभ्यास करना है। Sit erect.
कॉन्सेंट्रेट ऑन योर लेफ्ट नोस्ट्रिल। अपने चेतना को, सजगता को बाएं नथुने की तरफ ले आओ। फील द टच ऑफ एयर इन योर लेफ्ट नोस्ट्रिल। पहले यहाँ कल्पना करो, सोचो कि मैं बाएं नथुने से हवा अंदर ले रहा हूं, बाएं से छोड़ रहा हूं। कोई अनुभव नहीं आता, कोई बात नहीं। अपने दाहिने हाथ का दाहिना अंगूठा दाहिने नाक के हड्डी के थोड़ा नीचे रख के दाहिना नथुना बंद करो। मैं सांस लेने और छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं। नो इंटेंशनल मूवमेंट। जो हो रहा है उसका साक्षी हो जाओ। रिलैक्स। दाहिना हाथ नीचे, बाएं हाथ का अंगूठा बाएं नथुने पर रखो। हमने केवल अवरोध पैदा किया। जहां दो नथुने हैं, एक का ही इस्तेमाल करना है एक समय पर, लेने और छोड़ने के लिए। रिलैक्स। दोनों हाथों को रब करो, आंखों पर, चेहरे पर लगाओ। अब आपका अनुभव बोलो। मूवमेंट हल्की सी ऐसा हल्का सा मूवमेंट होती है। लेफ्ट में अगर दो लेफ्ट में ऐसे मूवमेंट पूरा सर तक होता है। अगर हम इसको एक से लेंगे, दूसरे से छोड़ेंगे, दूसरे से उसी से लेंगे, इसी से छोड़ेंगे, तो क्या ये अनुभव आता रहेगा? लेट अस ट्राई। अपने हाथ की विशिष्ट मुद्रा बनाते हैं। तो हम दाहिने को बंद करेंगे, बाएं से सांस को अंदर आने देंगे। मैं बोल रहा हूं लेना नहीं, क्योंकि जैसे ही नाक में हाथ इतना मैं जब गला साफ करता हूं तो अच्छा नहीं कह रहा होता हूं। खैर कोई बात नहीं। जस्ट बंद करना, बाएं से सांस को छोड़ना, आने देना अपने आप, फिर उसको बंद करना। जो भी क्रिया हुई हो रही है उसे होने देना, और अल्टरनेट नोस्ट्रिल का यूज करना है। वो जो चल रहा था दोनों नथुने से, वह एक एक से चलाना है, जस्ट नॉर्मल। एक नथुने से पूरक होने के बाद उसको बंद कर देना, तो दूसरे से अपने आप रेचक होगा और उससे अपने आप पूरक होगा। पूरक होने के बाद दूसरे को खोलना है, पहले को बंद करना है।
इतना ही करना है। लंबा बिल्कुल करना नहीं, सांस को तीव्रता से लेना नहीं, ताकत लगाकर छोड़ना नहीं। मुंह खोलना नहीं, जस्ट रिलैक्स। ओके, स्टॉप प्रैक्टिस। संक्षिप्त में जरा जल्दी जल्दी आपका अनुभव। जो श्वास ये ए साइड से लिया तो इधर आता, इधर से आता, ऐसा है। अच्छे, आपका अच्छा, तो ही इज फीलिंग द टेम्परेचर ऑफ एयर। वायु का तापमान जब सांस बाहर जाता है तो वो ज्यादा है ना, और लेते हैं तब। अच्छा, ये जो इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में बाहर से जो आई हुई है ना, उसी को हम यूज करते हैं। इट्स ए वेरी डिफिकल्ट टास्क। Without using the information from the outside, we can experience anything. We are not able to experience anything. Let us, we will not move into that area. अब एक नाक, एक कान, इधर देखो मेरी तरफ, एक इंडेक्स फिंगर एक कान में, एक नाक में लगाना। एक नोस्ट्रिल और एक नोज, अब ईयर बंद करना। चलो दूसरा करो। अब आपको समझ में आने के लिए हमिंग साउंड, भंवर गुंजन की आवाज से सांस छोड़ना, लेना पैसिव, छोड़ना भंवर गुंजन की आवाज में। अब इसे प्रोलॉन्ग करना है, लंबा छोड़ना है। सांस भर लो, चेंज। चेंज। जिससे सांस छोड़ा उसी से लेना, और दूसरे से छोड़ने के लिए नोस्ट्रिल को और कान को बदलना। जो कर रहे हैं वह महसूस करेंगे देयर आर वाइब्रेशंस। हमारे स्कल में कई प्रकार के वाइब्रेशंस पैदा होते हैं। गर्दन टेढ़ी नहीं करना, गर्दन सीधी, सीधा बैठो। और इसीलिए ये भी एक प्रीरिक्विजिट है कि ध्यानात्मक आसन में आप सीधा बैठने की क्षमता का विकास करें। हाँ, क्या अनुभव था, जल्दी जल्दी।
तर नाकामधून डोक्यामध्ये असं वेगवेगळे व्हायब्रेशन होत होते. अच्छा, अलग अलग वाइब्रेशंस हो रहे थे अपने स्कल में। आपका क्या कहना है? मस्तिष्क की तरफ, इधर कान की तरफ नहीं, मस्तिष्क की तरफ, यहां से ऊपर आपका पूरा स्कल में था। हाँ, चलिए अब दोनों कान बंद करना है और भ्रामरी रेचक भंवर गुंजन की आवाज के साथ सांस बाहर निकालना है। रिलैक्स। अब जब हम यहाँ बैठे थे, अभी बैठे, इसमें क्या अंतर है? अच्छा, बहुत रिलैक्स लग रहा है आपको। प्रश्न ये था कि जब हम यहाँ आए थे 1.5 घंटा पहले, जब बैठे थे, अब बैठे हैं, इसमें क्या अंतर आपको कुछ लगता है? अच्छा, कामनेस महसूस होता है, इनको शांति, काम, एक ही अलग अलग शब्द। चलो, जब तक हम इस प्रकार से शांत नहीं हो जाते, तब तक नाड़ी शोधन भी नहीं करना है। फोकसिंग योर माइंड इज इम्पोर्टेंट। चलिए, यदि किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। कई प्रश्न है? प्रश्न हा आहे सर की आसन झाल्यानंतर आपण प्राणायाम करतो, पण ह्या प्राणायामासाठी हा जो आपण आता अभ्यास जो सांगितलेला आहे, हा अभ्यास आपला झाला आहे किंवा आपण त्यासाठी प्राणायामासाठी तयार आहे, हे आपण कसं समजायचं? Very good. He is asking, sir, you told that after asanas one should perform pranayama. Now, how we can recognize that all the prerequisite for pranayama is completed? So, for your kind information, being a grahastha, it's very difficult. है ना? For that, you have to become a sannyasi. You have to renounce the world and concentrate on your sadhana, then and then that will be possible. But for an average person, when you feel calm, quiet and fresh, जब आपको प्रसन्न लगे, है ना, और इसलिए आसनों के अभ्यास के बाद रिलैक्सेशन शवासन में करना है। शवासन होने के बाद, उठ के बैठने के बाद आपको शांत और प्रसन्न लगे, बस उतना ही पर्याप्त है प्राणायाम का अभ्यास शुरू करने के लिए। ठीक है, आपका कोई प्रश्न? अच्छा, तो इनका प्रश्न ये है कि सर आपने पूर्व मार्ग, पश्चिम मार्ग, दक्षिण मार्ग, वाम मार्ग, मध्य मार्ग, वायु मार्ग बताए हैं, वह क्या है? उसके लिए हमें ट्रेडिशनल टेक्स्ट में जाना होगा और अनुभूति के लेवल पर इन प्राण मार्ग को समझना होगा। या इसके लिए हमें कम से कम अंडर ऑब्जर्वेशन 1 से 2 माह का अभ्यास करना चाहिए, उसके बाद ही हम वह अनुभव कर सकते हैं। खैर, अपने पास में समय नहीं है और वहाँ कहीं किसी का
YouTube पर प्रश्न है? अच्छा, स्पॉन्डिलाइटिस में व्हाट asanas? Generally, backward bending asanas will help, and pranayama, the best way for anybody, if he is breathing, he can do anulom vilom. तो हमें ये ध्यान रखना है, जो आदमी का सांस चल रहा है वह अगर अनुलोम विलोम शुरू कर देता है तो वी आर बैलेंसिंग आवर एनर्जी, एंड व्हेन एनर्जी इज बैलेंस यू कैन रिकवर easily and healing will be more. Now sit in erect. We will close today's discussion and practice with Om chanting thrice. Om. 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 Relax. आज इतना ही। कल हम सूक्ष्म व्यायाम के बारे में जानेंगे। हरि ओम। आज का दूसरा जो सेशन है वह ठीक 11:30 बजे 11:30 there will be a next session, so please join just 2-3-5 minutes before 11:30. Thank you. Hari Om.